जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, नेवर से डाई सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ फिर से रूबरू हैं। नेवर से डाई इज दैट यूनिक सीरीज जिसमें हम फौजियों की उस लाइफ से आपको अवगत कराते हैं जिसमें उन्होंने फौजी ट्रेनिंग को यूज करके अपने चैलेंजेस और डिफिकल्टी को फेस किया और उसमें भी सक्सेस प्राप्त करी। Today we have among us Captain Suresh Sharma, who wears various hats, from army veteran to a wildlife filmmaker to a snake conservationist and now into tourism industry. How and what types of challenges did he face and how did he came out as a winner? We will discuss with him. But before that, let's have a look on his life. Since childhood, Captain Suresh Sharma was passionate about two things, the army and wildlife. और इन दो पैशंस के लिए उन्होंने अपना 100% दिया, कई सेटबैक्स भी देखी, पर आगे बढ़ते गए. In Indian Army, he served for 6 years, including his deployment at Sri Lanka as part of the Indian Peacekeeping Force. उनके बोल्ड एंड सेल्फलेस नेचर के लिए उनको अपने जूनियर से बहुत इज्जत और प्यार मिला. वो रिस्क टेकर थे, यहाँ तक कि उन्होंने हाई रिस्क मिशन में जाने के लिए भी वॉलंटियर किया ताकि एक न्यूली मैरिड लेफ्टिनेंट को अपना जीवन खतरे में डालना ना पड़े. LTTE के अगेंस्ट एक ऑपरेशन में कैप्टन शर्मा अपने टीम को लीड कर रहे थे जब वो एक गॉर्ज में जा गिरे और उनके घुटनों पे गहरी चोट आई. कोई और लीडर ना होने के कारण बिना ट्रीटमेंट करवाए उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने 15 से 20 दिन गुजारा. Only when he could be replaced, then he reported sick और उनके गहरी चोट की वजह से उनका पैर प्लास्टर में डालना पड़ा और फिर उन्हें इंडिया वापस आना ही पड़ा. इस इंजरी के बाद उन्होंने डिफिकल्ट डिसीजन लिया आर्मी छोड़ने का. हालांकि उन्होंने आर्मी सर्विस को अलविदा बोला, लेकिन लाइफ में वो सोल्जर ही रहे और वो आर्मी को क्रेडिट देते हैं for shaping his personality. He then joined a wildlife filmmaking crew and launched into his other favorite pursuit. उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, including a taste of failure that forced him to find a new means to earn a living. उन्होंने वाइल्ड लाइफ सोवेनियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू किया. वहां से वो स्नेक कंजर्वेशन के काम में लग गए. उनके इन चॉइसेस में पैसा नहीं था, बट उनकी डेडिकेशन 100% थी. When tourism tugged him, he went in that direction too. Launched a business जो कि रिसेशन के टाइम बुरी तरह फेल हुआ. He was devastated. उनका एक रेंटेड घर था, 2 छोटे बच्चे थे. वो क्या करते? धक्का खाने के बाद उठना तो था ही. He revived plans of building a camper van that he had put on the back burner for many years. फंडिंग मिलना बहुत मुश्किल रहा, लेकिन किसी तरह पैसे इकट्ठा हुए और वैन तैयार हुई. सस्टेनेबल टूरिज्म का ये बिजनेस उनका अच्छा चला, बट कोविड स्लैम्ड द ब्रेक्स ऑन इट. बट इसमें भी उन्होंने मौका ढूंढ लिया. कन्फाइनमेंट एंड सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कैंपर वैन टूरिज्म के लिए अपॉर्चुनिटी राइप है और कैप्टन शर्मा इज रेयरिंग टू गो. अपनी मुश्किल समय में वो एक कविता हमेशा से याद करते हैं. उसके लास्ट की पंक्तियां कुछ ऐसी हैं. So stick to the fight when you are the hardest hit. It's when things seem worst that you must not quit. You just saw a small glimpse of his life, but today we have the man with us himself. Let's speak to him and understand how did he face various challenges, came out as a winner. Captain Suresh Sharma, welcome to you. Thank you, Major DP. It's nice to be with you as a Kargil war veteran. Thank you so much, sir. My first question to you is, as they say कि फौजी फौज से निकल सकता है, लेकिन फौज फौजी से कभी नहीं निकल सकती. You say that even though you are retired early, but army has a strong influence upon you. Can you explain how? I believe Forge is a discipline, is a way of life. I have been trained at home as a Fauji when I was a small kid by my father. And when I went to the army, I just wore another uniform. And today, I am wearing another uniform to serve my country
because I served my country for 6 years, and during that 18 months was fierce action in Sri Lanka. And once I did my duty, I thought, okay, let me wear this another uniform. So I'm still a Fauji. I still live like a disciplined life, and I'm living the same life. Nothing has changed for me except the color of my uniform. ग्रेट सर। अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि वो पहला एक्सपीरियंस या वो पहला फेलियर्स या फर्स्ट सेटबैक जो आपने फेस किया, हाउ डिड यू ओवरकम दैट? हाँ, पहला अगर आप पूछे मुझसे सेटबैक तो खैर नहीं, इट्स ऑलवेज अ लर्निंग इन दैट। पहला तो ये था कि इंटरव्यू में फेल हो गए, एसएसबी में गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, और मुझे पता है मैं बेंगलोर में अकेला बैठे रोता रहा कि क्या मेरी किस्मत में यूनिफॉर्म डालना नहीं है। तो मैं घर आया, अपने आप को तैयार किया, अपने आप में त्रुटियां निकाली, कमियां निकाली, इंट्रोस्पेक्शन की कि मेरे में ऐसी क्या कमी है जिससे मैं अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाया वहां। तो मैंने 6 महीने तैयारी की, दोबारा गया और फिर फेल हुआ, लेकिन फिर गया, फिर मैं पास हो गया, बिकॉज मैं तैयारी करके गया। मैंने कहा नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, दैट्स इट। नो, बट इफ यू सी कि मेरी चॉइस चूज करने के बाद अगर आपको फेलियर्स नजर आते हैं, तो हाउ डू यू नो अगेन मेक अ ऑप्शन कि अब छोड़ना है या चालू रखना है? हाँ देखो, जब आपको कोई तंगी आती है, यू डोंट गिव अप इजीली, बट डोंट बी फुलिश टू स्टिक ऑन टू समथिंग विच इज नॉट सूटिंग यू। पहले तो अगर आप ये डिसीजन लो कि क्या मेरे में काबिलियत है, मैं अपने आप को इसके बराबर में उठा सकता हूँ, अपने को इसके लेवल पे ला सकता हूँ, इस चीज की डिमांड कितनी है, हाउ मच इट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। अगर आप वो कर लेते हो तो इसका मतलब आपने चॉइस ठीक कर ली। उसके बाद तो किसी भी चॉइस में तंगियां जरूर आती हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जिंदगी में जहां हर्डल्स नहीं आती। आपने बताया कि आपकी जेब में सिर्फ 200 रुपए थे एंड यू हैड सीन सम सॉर्ट ऑफ अ सेटबैक इन द वाइल्ड लाइफ वेंचर, और वो फाइनेंशियल लॉस भी ऊपर से था। सो उस फाइनेंशियल लॉस के कारण काफी ज्यादातर लोग जो हैं वो हताश हो जाते हैं, दे गिव अप। हाउ डिड यू कोप अप विद दैट फाइनेंशियल लॉस एंड हाउ डिड यू फाइंड स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन, एंड लेटर ऑन कुड यू मेक इट अप और नॉट? हाँ तो मैं तो ये कहूंगा, एक पेपर मैंने अपने दीवार पे सामने लगा रखा था, उस पे लिखा हुआ वो पोएम आज भी मेरे ख्याल इंटरनेट पर है, डोंट क्विट। दैट मोटिवेटेड मी, that says if you feel tired, take a rest for a while but don't quit। मैं एज ए फौजी, आई एम taught how to be respectful, to take care of guests, and to respect everybody first, others, those are in front of you. And we Fauji's have the best of the hospitality training in the Fauj, and we know how to manage our unit, we know how to manage HR, we know how to manage our resources. We can manage big thing out of small thing. Sometimes we put up a show, as we, I mean, a lot of civilian friends of yours must have also told you, जंगल में मंगल कर देते हैं हम जहां भी जाते हैं, तो वो काबिलियत आपको टूरिज्म में फिट करती है। तो आई फाउंड दैट इज द बेस्ट चॉइस, दैट्स वन। सेकेंडली, मैंने सोचा यार मैं तो कुदरत को एंजॉय करता हूं, तो मैं क्यों ना लोगों को लेके जाऊं कुदरत के पास और उनको दिखाऊं कुदरत का नजारा, और उनको अपने आप ही रियलाइज होगा कि कितनी हमने गंदगी डाली हुई है कुदरत में, नाले गंदे कर दिए, नदियां गंदी कर दी, समुद्र गंदा कर दिया, पेड़ काट दिए। तो अब लोग खुद ही बोलते हैं। अभी मेरा मिशन है, मिशन नेचर कंजर्वेशन थ्रू टूरिज्म एंड फोटोग्राफी। सो जो मेरा जो ट्रेनिंग है घर में मेरे पिताजी ने दी और फौज ने दी, वो टूरिज्म में बहुत बढ़िया काम आ रही है। लेकिन आजकल के सिनेरियो के हिसाब से जो कोविड का सिनेरियो है, जो 2020 का जो साल है, इसमें tourism industry is also quite badly hit. So how do you now see that you would be able to bounce back, or is that something that your type of area is still safe, or which way the army training will help you here now? Now I'll tell you what I did. जब कोरोना आया तो किसी को नहीं पता था। कोरोना आया जैसे आपकी एक, मान लो आप अपने डिफेंस में बैठे हो
और आपके ऊपर गोलियों की बौछार हो गई, आप क्या करते हो? आप अपने ट्रेंच में चले जाते हो, हाइड योरसेल्फ फॉर अ व्हाइल। उसके बाद आप जायजा लेते हो कि क्या हुआ, देन यू प्लान हाउ टू रिस्पॉन्ड। सो कोरोना आया तो मैं भी 15 दिन अपने कमरे में बैठा रहा, कुछ नहीं किया। अब मुझे ये लगा कि कोरोना भाई साहब जो आए हैं, इट हैज कम हियर टू डू कोर्स करेक्शन, इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इट इज टेलिंग एवरीबॉडी टेक ए ब्रेक। हम लोग सब चिल्लाते थे, अरे थक गए, बहुत काम है, रैट रेस हो रही है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कोरोना। मैंने वो चीजें सीखी कोरोना के दौरान जो मैं कभी ना सीखता। मैं सोया रहता तो अपनी वेबसाइट को हैंडल करना सीखा। मैं तो ये कहूंगा सबको कि भाई तंग मत हो, दुखी मत हो, डोंट कर्स कोरोना। कोरोना के आने पे एक दरवाजा बंद हुआ है, 4 और खुले हैं, उसको देखो। अपने घर, अगर आपके पास होम स्टे है, आप उस होम स्टे की साफ सफाई करो, उसको और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो। इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ, इंटरनेट पे सीखो, औरों के होम स्टे देखो, औरों के होटल देखो, आइडियाज लो, वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखो। उन्होंने टूरिज्म हमारे से पहले चलाया। तो ये सीखने की बात है। 4 महीने में मैंने बहुत कुछ सीखा और हम अभी बहुत कुछ नया लेके आएंगे। और जिस दिन ये टूरिज्म सेफ हो जाएगा, मैं तो ये कहा करता हूँ लोगों को हंसकर, या कोरोना सुइसाइड करेगा या हम इसको असैसिनेट करेंगे, तो उसके बाद लाइफ शुरू हो जाएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कोरोना कब थोड़ा माइल्ड डाउन हो जाएगा, हम तब जाएंगे बाहर जब बिल्कुल सेफ हो जाएगा। बिकॉज आई डोंट वांट टू पोज थ्रेट टू माय क्रू एंड अदर्स। आई विल नॉट बी फुलिश, आई विल टेक पीपल आउट ओनली व्हेन इट इज सेफ। एक अच्छा फौजी अपनी पोजीशन बनाएगा, पत्थर की आड़ लेगा, फिर निशाना मारेगा। वो मैं काम कर रहा हूं अभी। हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, नई चीजें लेके आएंगे, टॉरस को बढ़िया बनाएंगे और इसकी सिखलाई चल रही है हमारी। How do you define success and failure in your life? मैं तो कहता हूं कि जिसको लोग फेलियर मानते हैं, मैं उसको एक टर्न मानता हूं। अगर आपको कोई अड़चन आई है, दैट इज नॉट फेलियर, इट इज एन अड़चन, इट इज अ टर्निंग, इट इज अ टर्निंग पॉइंट। सिट डाउन, टेक रेस्ट, रिव्यू, एनालाइज एंड स्ट्रेंथन योरसेल्फ। इट इज लाइक आफ्टर एवरी ऑपरेशन फौजी जो है वो करता है रीऑर्ग, रीकूप, रिप्लेनिशमेंट। सो आप जब भी कहीं एक पड़ाव पूरा होता है या एक टर्निंग आती है, तो अपने आप को रिकूप करो, रिफर्बिश करो, रीऑर्गेनाइज करो और स्ट्रेंथन अप करो, मूव अहेड। रास्ता फिर भी खुला है। Who inspires you? Everybody, good person around me, my children, my wife, my father, my good friends, they motivate me. A person like you whom I watch every day, I really, let me tell you this, I have never said this to you, but your spirit, when I see you running, I know your story when in Kargil you were reduced to nothing, just a small pottery of bones and flesh, and you have come out of that. So that is my inspiration from everybody. I'm telling you, a chai guy, chai wala on the roadside, a mochi, a rickshaw guy, a courier boy, everybody, a laborer, they have something to give me. I learn from them. From every good human being, I've learned a lot. You have traveled so much. What is your favorite destination? Hindustan. I love that. And what's your favorite quote? Stay foolish, stay hungry. That was by Steve Jobs. It's great talking to you, Captain Sharma, and I'm sure people who will see you and your life experiences, they will learn a lot of things. The never say die attitude, which we wish to convey through this episode. Thank you so much, and all the best to all your future ventures. God bless. Jai Hind. So this was Captain Suresh Sharma with us, who wears various hats and now wearing the hat of into tourism industry. Next week, we will come back with another story of Fauji's life and his never say die attitude. Thank you so much. Jai Hind.
है।